Hi friends, welcome to my channel. And I want to say one thing is that this straight talk concept, I have done it earlier also. It is called coffee table conversations. So you'll have two different the playlist. These are the topics. Straight talk, which I have done generally in the outdoors. 80% of the times I'm outdoors. So straight talk is just a free flow, and coffee table conversation was far more sitting in a relaxed environment where I'm just giving opinions and feedback about certain things. So the concept, if you see, coffee table conversation is also very interesting because that is also was in free flow. It's just that, as I said, there are two different aspects to it. Now I have this is the transitioning part of my life when I have taken some very major decisions. There might be possibilities I can see. I might be moving to a new location, or I might be traveling to a different country. Possibilities are there. So I want to enjoy my time in this environment, my immediate environment at the moment. So there are many possibilities. So maybe that time my content will be a little more different because location different rahega. Maybe place will be different in coming days, in coming months. So there are some very drastic changes which are going to happen. So I'm keeping in very open mind. I have loved and ऐसा भी नहीं कि मैं I will find it little thoda strange क्योंकि this is my comfort zone. When I'm in my comfort zone, the content will be different, the thought process will be different. And जब मेरे ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आएगी और ज़्यादा चीज़ें आएगी, तो that time it will be different. सो कंटेंट का जो टाइमिंग रहता है, स्पेस रहता है, वो भी मैटर करता है. व्हेन आई एम सिटिंग एट माई होम, आई एम इन माई बेडरूम, इट इज मोर लाइक अ cocoon. You know, there are disturbances, but then it's a different feeling altogether. When I'm out in the open, I was shooting when there were children in the background. I said, "Rehne do. Let those children play," and they were doing it purposely also because they found me very cute and nice and beautiful, whatever it was, and they were fascinated by me. So they wanted to gather my attention, because I'll say chup raho, but I didn't say that. I was enjoying their background sound and all that. I let them play. So sometimes you should just let go, na. Let it be. जाने दो, शोर मचाने दो, क्या है, बैकग्राउंड ही तो है. Now they are gone. They were just like मैंने उनके photographs भी लिए. I have taken their photographs and they really look so nice. So तुम्हारे पास दुनिया भर की सारी चीज़ें होंगी, सुख सुविधा होंगे, comfort होंगे, and you'll still be miserable. और इनको देखो भाई, आई सीन माई मदर की सारी चीज़ें, इतनी विटामिन की टैबलेट्स लेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, इतने प्रेयर करेंगी, फिर जाके टीवी देखेंगी. मैंने बोला, तुझे सुकून क्यों नहीं है? वाई आंट यू हैप्पी? वाई आंट यू जॉयफुल? वाई आंट यू ग्रेटफुल? वाई आंट यू हम्बल? मतलब तुम्हें इतनी सारी चीज़ें मिली है और ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स तुम अपनी मनमानी करती हो, तुम अपनी दादागिरी भी करती हो, अथॉरिटी यूजलेसली चीज़ों का, बातों का बतंगड़. व्हाई आरंट यू हैप्पी? बिकॉज वो दिल से नहीं जीते हैं, वो सुपरफ्लूअस वे से जीते हैं. वो अपना पैसों का ढौस जमाते रहते हैं ना. तो मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ, आई एम एन एम्पावर्ड लेडी, देखो मैं कितनी स्ट्रॉन्ग. आई लुक एट हर एंड आई से, क्या मतलब, किसको दिखावा करना है? यू बी हैप्पी, यू अप्रिशिएट स्मॉल थिंग. जैसे अगर मैं बोलूँगी आ जाओ हम लोग कुछ करते, नहीं ये नहीं कर, मैंने बोला हर चीज़ में तुम्हें रेजिस्ट कर, तुम्हें जस्ट अपना अथॉरिटी दिखाना है बस. देयर आर टाइम्स व्हेन शी इज़ इन very far and few times when she's actually agreed with me and she has been, वो खुश रहती थी. मैंने बोला खुश रहना सीखो भाई. हम अपने पेरेंट्स से भी सीखते, जलना, कूदना, सिकुड़ना, हरामीपना करना, अनग्रेटफुल रहना, मिजरेबल रहना, टॉक्सिक बनना, ऑफेंसिव रहना, ऑलवेज डिफेंसिव, पैसिव अग्रेसिव वाली एनर्जीज. मैंने बोला इतनी सुख सुविधा है, इतनी सारी
तुम कुछ कुछ सीनियर सिटीजन्स के खाने पीने के वांदे होते हैं, मैंने बोला ये टैबलेट में नहीं है, यू कीप योर सेल्फ फ्री, रिलैक्स योर सेल्फ, stop watching that घटिया news, stop gossiping so much, being so, I always tell her on her face, I said what was the need for you to be so extremely negative? And I always tell her that it will be a minus point on you, they will quote you. I said this lady was speaking, don't you go around blabbering just like that. You think just because you people are on the top shots I will get away with anything? And then जैसे मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा ही नहीं, मैं मुझे याद नहीं मैंने ऐसे कहा, तो मैंने बोला ये पैंतरेबाजी क्यों है, कीप योर सेल्फ रिलैक्स्ड, मज़े कर, अच्छे अच्छे खाना बना, ऐसे रसों में जाते ये क्यों किया, ये क्यों लाया, ऐसे। मैंने बोला तू डोंट गिव मी इंस्ट्रक्शंस बिकॉज आई एम अ कुक माई सेल्फ, इफ आई नीड समथिंग आई विल आस्क यू, डोंट होवर अराउंड द किचन एंड स्पॉइल द एनवायरनमेंट, बिकॉज मैं रसोई को बहुत प्लेस ऑफ वर्शिप मानती हूँ एंड आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर। अब मैंने बोला श्योर नॉनसेंस बातें होंगी, फालतू के कॉन्फ्लिक्ट करोगी, कॉन्फ्रंटेशनल बिहेवियर हो जाएगा, मैंने बोला किचन में मैं हाथ नहीं लगा, मैं नहीं खाना, मैं नहीं। आई सेड देन यू विल हैव टू गो एंड डू व्हाटएवर। आई सेड इफ यू आर टेलिंग मी आज ये मन कर रहा है देन लीव मी अलोन। सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट, इवन विद माई फ्रेंड्स, अगर वो बोलते ना, मैं बोलती हूँ सारी चीज़ें रखो और किचन का दरवाज़ा बंद कर दो, जस्ट लेट मी, डोंट कम एंड बॉदर मी एवरी 5 मिनट्स, डोंट कम एंड चेक ऑल्सो मैं क्या कर रही हूँ। सो वैसे मैं आई एम वेरी वेरी क्लियर विद माई दिस। सो मैंने औरतों को देखा है किसी चीज़ में खुश नहीं है, कोई चीज़ उनको खुशी में, बेस्ट ऑफ कपड़े है, बेस्ट ऑफ खाना है, आराम है, सुकून है, फिर भी चिड़चिड़ मची रहती है, कुछ ना कुछ किसी और के लफड़े, किसी और के गॉसिप हमारे सर पे मड़ के। मैंने बोला ये इज़ इट योर इशू, why are you bothered, why are you being so aggressive about somebody else's issues? You're not going to help that person neither financially neither materialistically, फिर why are you behaving like a monitor? So हम लोग अपने पेरेंट्स को करेक्ट करने चाहिए, स्पेशली करेक्ट मतलब अगर वो तुम्हें इन्वॉल्व करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो यू टेल देम कि भाई यू आर ऑल्सो रॉन्ग, भाई आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। हम लोग क्या करते हैं, हम किस साइड लेते हैं, सो दे टेक एडवांटेज ऑफ इट, यू नो। Don't be a team member to such stupidity. I tell her why I am, don't, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे I'm not interested. तू जाने, तेरे रिश्तेदार जाने, मैंने बोला सब लोग एक ही, एंड ऑफ द डे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम थाली के बैंगन हो सारे के सारे, मुझे नहीं बॉदरेशन है, मुझे कोई लेना देना भी नहीं। कभी कभी मैं एज ए सेड पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी, फिर मैंने थोड़ा टर्न डाउन किया, थोड़ा मैं एकदम ही अचानक से, वो खुद को भी रियलाइजेशन नहीं होती है ना कि तुम बैठ के लोगों की अनाप शनाप अनशंट बातें सुनते हो जिसका कोई ना वैल्यू ना मीनिंग, यू नो। तो नाउ आई एम जस्ट मोर फोकस्ड एज टू व्हेन मैंने डिविएट करके, तो मैंने बोला जस्ट लेट अस स्टिक टू द क्वेश्चन, मैंने जो आंसर दिया, तो हमें अपने कॉल आउट पेरेंट्स, इज इट ऑनर देम, रिस्पेक्ट देम, लेकिन वो अपने हद से ज़्यादा जाते हैं ना, तो यू शुड टेल देम कि भाई आई डोंट अग्री विद यू, आई डोंट वांट टू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस गॉसिप। या तुम्हें अगर ये वाला खाना बनाना है और तुम्हें कुड़ते रहना है, कंजूसी करनी है, तो तुम हैंडल करो भाई। कंजूसी भी क्या होते हैं, पर्पसली कंजूस होते हैं, ये स्पेशली रिच पीपल आई हैव सीन पर्पसली कंजूस, पर्पसली उनको वो होल्ड करना पसंद आता है फाइनेंस, और वो दिखाना चाहते हैं कि भाई अभी उनसे 10 बार जाके मांगो, ये नहीं है ये दे दो, या तो तुम खाना, या तो तुम बनाओगे, या तो नहीं बनाओगे, या तो खुद का खरीद के बनाओगे। तो यू शुड टेल देम कि एग्जैक्टली व्हाट, यू नो, अगर तुम कंजूसी भी करनी है, हेल्दी भी रहना है, कुड़ना भी है, पैसे बचाने का क्या बचता है, वो डॉक्टर के पास ही जाता है इनका एवरी मंथ, इतने मेडिसिन खाते हैं। मैंने बोला देखो तुम लोग के 4-5 महीने हैं या 4-5 साल है, दोनों पैर कब्र में है, तो ये जाते जाते ये कलेश करना, ये रायता फैलाना अच्छी बात नहीं है। सीनियर सिटीजन स्पेशली, मैं तुम लोगों को ये मेरा एग्जाम्पल लेके बोलती हूँ कि मैंने इंटरेक्ट किया, मैंने मेरे नेबर्स के साथ भी इंटरेक्ट किया है, कैसे वो लेडीज़ रहते हैं। एक आध लेडी तो ऐसे मरे जाके, आई रिमेंबर शी हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड एंड उसने जाके पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेंज किया, फिर यू नो वेयर शी डाइड,
हाँ हाँ, देन शी फेल डाउन और उसके सर पे मार लगा, तो उसके बेटे ने उसको कुछ दिन अस्पताल में रखा और फिर ओल्ड एज होम में रखा, उसको याद भी नहीं रहा उसको कुछ भी। व्हेन शी वाज अलाइव ना, शी वाज वेरी कंजूस, वेरी चिड़चिड़ी, फ़ायदा उठाने वाली हरामखोर और बुढ़ी औरत, जो मेरे पास एवरी मंथ आती थी मेरे घर में, फरसान खाएगी, चाय पिएगी, कोल्ड ड्रिंक, मेरे 2-2 घंटे वेस्ट करेगी, ये कर शांति, वो कर, ये एडवाइस, वो एडवाइस, दुनिया भर की चीज़ें। जब वो कनाडा गई अपने बेटे के पास एक चॉकलेट भी नहीं लेके आई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शी वाज नेवर ग्रेटफुल, शी वाज नेवर ऑल द टाइम, शी वुड टेक इट फॉर ग्रांटेड। ए शांति लेट, मैंने बोला आंटी डोंट स्पीक टू मी, ए आई डोंट लाइक इट, यू हैव सम रिक्वेस्ट टू टेल मी, आई विल डू इट फॉर यू। I said, don't use this word A with me. And I said, what is it, auntie? You went to Canada, you couldn't get even a single candy from me? Because मुझे याद है मेरे घर में अगर imported chocolates होती थी, मैं उसको देती, मैं कम खाती थी बट उसको देती थी। So ऐसे ऐसी औरतें कैसे मर गई वो? No, that also she didn't die in Bombay. उसका घर रीडेवलपमेंट में गया था, then they were living in rent and then she went somewhere to her son's place in Pune and then she died in some old age home. 1 साल हो गया। मैंने बोला ये सड़ के बुढ़ी ऐसे, शी वॉज वेरी कंजूस, वो खाती पीती भी नहीं थी, वो ना ऐसे घूमती फिरती थी बस में, ट्रेन में, जस्ट टू वाइल अवे हर टाइम। शी वॉज सो स्टूपिड, और कपड़े भी नहीं खरीदती। जैसे आंटी प्लीज बाय सम क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ और बाय अ हैंड बैग, टोन रियली। हस्बैंड से कुड़ के सेपरेट भी हो गई थी मैनी ईयर्स अगो इन यंगर डेज, और हमेशा बुराई करती थी। मैंने बोला हस्बैंड में अपने गर्लफ्रेंड के साथ बड़ा मज़े कर रहा है गोवा में ओल्ड एज में। आई मीन एवर सिंस शी लेफ्ट हिम मैनी ईयर्स अगो, सो शी वॉज वेरी इंडिपेंडेंट, एम्पावर्ड वर्किंग लेडी थी ना, बहुत घमंड था उसको। इनफैक्ट उसने अपने माँ का घर हड़प किया था, डिस्पाइट बीइंग देयर वाज अ ब्रदर और समथिंग। तो ऐसी औरतें होती है, चैन ही नहीं है, और जब वो मरती है सड़ के मरती है। आई एम गिविंग अ लाइव एग्जाम्पल अबाउट दिस लेडी। जब वो मर गई मैंने बोला एक आंसू नहीं बहा, मैंने बोला इसने इतना फ़ायदा उठाया ना। एवरी टाइम आती थी वो, एवरी टाइम, शी वुड कम एवरी, स्पेशली संडेज को आती थी वो, और पूरा फुटेज खाती थी। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, चल ना बोलते ग्रोसरी जाते हैं फटाफट मैंने बोला तेरी फ्रेंड है, मेरी नहीं है वो। बट मेरी मम्मी भी बहुत जेलस होती थी जब उसकी फ्रेंड्स मुझे, मैंने बोला वो मुझसे काम करवाने आती है, वो मतलब ही लेडी है, उसको तुझसे भी कोई मतलब नहीं है यार। उसका लगे हाथ तो टाइम पास भी हो जाता है, फरसान भी खाती है, जो भी मैं बनाती हूँ वो भी मिलता है, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक वो भी मिलती है। अपने हाथ से उसने एक बार भी नहीं खिलाया। तो एक बार मैंने बोला आंटी इफ यू मेड सम स्वीट्स गेट फॉर मी सम, लिटरली। फिर ऐसे कुछ तो सूखे कोई स्वीट्स लेके आए। मैंने बोला शक्ल से भी सूखी, काली कुबड़ी, पतली सी, और इसकी मिठाई भी वैसी सूखी रुखी सूखी दुखी। सो ऐसे मैं बोलती हूँ, दिस इज द वे इट इज।